Okay, so let's start with today's positions. Okay, just is the screen visible, guys? I hope it is visible now. So let's start. Firstly, today we will start with a question. Okay, assess this position that is it winning for white or black can easily clinch a draw. Guys, are you there? Is it a winning position for white or is it draw for black? I mean, draw win for white or black has to work for a draw, which is the case, winning for white. Okay, now my second question comes, do you know the technique of winning with white here? हाँ जी, टेक्निक नहीं आती. अच्छा, so third question, if you don't know the technique, then do you expect to win this as white if you don't know the technique? I guess yes. Okay, that's the confidence. No. Okay, you can expect, but if black tries to trick you somehow and play some accurate moves without the technique, will you able to win this? I hope not. So let's look at the technique here. Firstly, it's white to move. Notice that pawn on e2 and f2 have they are connected pawns, and even if I remove one of these pawns, this position is a total draw. A total draw. Okay, but both these pawns work in tandem to achieve a winning position. So let's dwell in. Okay, what you have to do is always remember a chain. Okay, a staircase model is always the key. So here we have formed an isosceles triangle. If you notice this, okay, this is an isosceles triangle where we have base of 3 units and you know the sides of 1 units and 1 unit each. Okay, so always remember this isosceles triangle formation as a winning technique. Why? We will show you why. Okay, now what should be placed on the vertices of these isosceles triangle? Pawn on e2 will remain on this base, pawn on f3 will remain on this base, this vertex, and this rook on a3 will remain on this vertex. Okay, okay, any questions? And then what you have to do is you have to place the king between these holes. Matlab, what I'm saying is if you play f3, then rook to a4, and then to rook to e4 and king f2. ठीक है, by king f2 क्योंकि e2 is guarding this king against any checks from the rook on this file. इस फाइल में किंग संभाल लेगा, बट इस फाइल में मतलब किंग साइड में द किंग विल बी एबल टू विथस्टैंड द चेक्स ऑफ rook, but on the queen side, since rook becomes a long range piece, we need a shielding protection. Okay, so without much ado, let's get into the business. फर्स्ट मूव मेरे हिसाब से जो अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है इन द सेंस जो सही भी लग रहा है, आइदर इट इज f3 और इट इज e3. ठीक है, और f3 इज लुकिंग मच एक्यूरेट. वाई? बिकॉज इट अलाउज, सॉरी, e3 का प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ. प्रॉब्लम नहीं है बट इट काइंड ऑफ थोड़ा सा जिंक्स कर सकता है पोजीशन को. बात यह है, अगर आप किंग e4 आ सकते हैं, इफ एज ब्लैक इफ यू कम किंग e4, देन इफ आई गो किंग a2, you have rook b2 check, pushing the king backwards. Notice that the king cannot go forward. ठीक है, and if comes king e1, then king f3,
अब ये ड्रॉप हो जाएगा पॉन एंड वी आर इन अ सिमिलर वाउंड अप टेरिटरी ऑफ लूजिंग दिस पोजिशन. ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास एक वाइट से ट्रिक है. कैन यू फाइंड इट? देयर इज अ ट्रिक विथ वाइट विच यू मे ट्राई बट इट डज नॉट वर्क इन दिस केस. मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, but it might work in some cases. मतलब I guess it works in this position as well. Okay, can you find a tricky move here? There are 6 of you. Can anyone find a tricky move here for white? It's not the end of the world. अबे rook e3 नहीं आ रहा. Shrujal, e3 pawn is on e3, so you cannot come rook e3 here. e4 nope. थोड़ा मुश्किल है, but try to find it within a minute. आपको 50 है, 51 के अंदर फाइंड कीजिए. इट्स अ ट्रिकी मूव और आपको इसके आइडिया थोड़ा सा समझ में आना डिफिकल्ट हो सकता है. रुक के 8. बालाजी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ रुक ए रुक ए8. हाँ, रुक ए8. Moving the rook e8, सॉरी, checking the रुक black ए8 king एंड from the देन field. okay, okay, you are partially correct, but okay, this is actually a draw according to my assessment, but rook a8. Okay, it's 51 guys. Rook a8 has been given as the answer, which I think is the correct answer. The problem is white is setting up a trap here. Okay, now I think you can notice this. If you go rook f2 here, rook takes f2, then white has rook f8 check. Can you see the stunning check here? Can you see this stunning, resourceful idea implemented by white? A very, very cunning idea. Isn't chess beautiful? क्या chess एक बढ़िया sport है? You know, you have traps and tricks everywhere. All it takes is just a vision. And if you capture this, यहाँ पे rook takes f2, and I hope you know how to checkmate with the rook. Should I explain? किसी को नहीं पता तो आप फिर से बोलो. I will explain it again. Any of you who doesn't know rook checkmate, who hasn't watched my first video, guys, anyone? I am still giving you the chance. If you don't know, tell me honestly. I will be able to help you. Explain once. श्रीकर भाई, आप CSL खेलने वाले हो यार, आपको तो पता होना चाहिए था. चलो, कोई नहीं. Checkmate with single rook. You need the coordination of both king as well as rook. ठीक है. Black to move है. यहाँ पे king d3 खेल सकते हो. Thereafter, let's say we make a waiting move, rook h2. ठीक है. What is to be achieved? आप उस वीडियो को देखना, फर्स्ट डे, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. Here I will just give you a gist. Okay. What is to be done is this king should be always in a knight position with his opposition king. Okay. If he runs away diagonally, create a knight. Diagonal, knight, diagonal, knight. एंड अब ब्लैक किंग जो है बाहर नहीं जा सकता बोर्ड के. ही हैज टू कम स्ट्रेट फेस इन फेस विद द वाइट किंग. नाउ गिव अ चेक. ही गोज बैकवर्ड्स. यू गो हियर. ठीक है. एंड नाउ मूव दिस रुक हियर. रुक ए3, वेटिंग मूव, क्योंकि आप नाइट प्रिजर्व कर रहे हो. फोर्स दिस किंग टू गो इनटू द बिशप. यू गो नाइट, बिशप, नाइट, बिशप, knight, bishop, and knight. Now straight face, rook check. This straight आना है आपको जब भी. देखो, आप g3 भी खेल सकते हो, but the problem is this king is approaching this rook. Okay, so try to play it straight. आपका moves जो है कम हो जाएगा. ठीक है. king e5 अगर खेलता है वो, दो ऑप्शन है. या तो किंग g5 खेलेगा, रुक b4 वेटिंग मूव खेलना होता है टू फोर्स हिम इनटू डायगोनल कॉर्नर, और फिर यहाँ पे जब आता है यहाँ पे चेक दे दीजिए, पीछे चले जाइए. ओके.
एंड क्रिटिकल मूव इज और प्रोलॉन्गिंग मूव इज किंग E5, ठीक है। अब यहाँ पे वेटिंग खेलना है, रुक H4, फोर्सिंग दिस टू द अपोजिट साइड ऑफ द बोर्ड। नाइट बिशप याद रखें, किंग D5, किंग E3, बिशप नाइट, बिशप नाइट, बिशप नाइट। आई होप सबको पता चल गया। स्ट्रेट फेस, रुक चेक, पीछे जाओ, स्ट्रेट फेस, नाइट, वेटिंग मूव, बिशप नाइट, बिशप नाइट, बिशप नाइट, बिशप एंड नाइट, स्ट्रेट फेस, रुक चेक, straight face, knight, waiting move, this, bishop, knight, bishop, knight, bishop, knight, bishop, knight, bishop, straight face, rook check, and if you go here, I am going straight for the throat. King last rank पे आ गया, knight, waiting move, final waiting move, bishop, knight, bishop, knight, bishop, knight, bishop, knight, straight face, and it's time to give checkmate. श्रीकर अंडरस्टूड? कुछ नहीं करना आपको, बस बिशप नाइट, बिशप नाइट, बिशप नाइट बोल बोल के इसको चेकमेट करना है, गोली मारनी है, दैट्स इट, ठीक है। और जब भी स्ट्रेट फेस पे आए, whenever this king comes in straight face, just play a waiting move to the opposite wing and checkmate कर दो आराम से, ठीक है। I have explained it in much more details, much more formal way in the first video itself. Go and watch. Already 49 members have watched that and found it pretty helpful. आप भी देखो and be our guest, be our 50th member. Okay. So shall we continue with the agenda? अभी हमने अपना मेन लाइन ही स्टार्ट नहीं किया है, साइड लाइन ही इतना लंबा चला गया। चलो, बात ये है F3 पे आए हम। अब notice the difference guys here. If you play F3, अब डिफरेंस देखो, दिस E4 इज नॉट अवेलेबल, एंड अगर किंग D4 या किंग F4 आए तो आप किंग F2 पे यहाँ पे हाइडिंग ले सकते हो, एंड नाउ देयर इज नो रुक B2 चेक, योर पॉन इज गार्डिंग, ठीक है। और यही चीज हमें बनानी है। सो F3, आई गो किंग F4 एज द बेस्ट मूव, यहाँ पे किंग F2। अब देखो किंग इज नॉट एबल टू कम इनसाइड, and we are going to go rook A4 check and go for rook E4 E, and then उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे। Okay, now king F2, do you notice the difference here? King F2 is good because this pawn on E2 is guarding the check of from the rook which is on B8 file. समझे? I hope you all understood it. Can we move on? थम्स अप दे दो समझ गए तो। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब ब्लैक से चलो मान लिया मैंने रुक B7 खेल लिया, ठीक है। नाउ आई प्ले रुक A4 चेक। नोटिस दैट किंग डज नॉट हैव एनी स्क्वायर्स ऑन द फ्रंटल रैंक, सो वी गो किंग E5, या चलो किंग F5 जाते हैं, ठीक है। किंग F5 लुक्स अ बिट accurate, ठीक है। Post variation and king F5 looks pretty accurate here. And अब don't make the mistake of playing E3, और E3 भी ठीक है, I don't think it's a wrong move because rook B2 then king G3 आता है। हाँ, अब I think E3 is the best move. Sorry, you can play E3, exclamation दे देते हैं यहाँ पे। Sorry, not brilliant move. It's an exclamation. Why? Because it allows a temporary check, but at the same time you have king G3, ठीक है। Now rook B1 trying to give check to the king through this way, force the king backwards, okay, king E6, and then play F4 here. Now if he goes rook G1 check, go for something like king F3, rook F1 check, king E4. अब हमारी टेक्निक यहाँ पे रुक को E5 पे ला के रखने का है। Either you can do this with a corner, whenever the corner pawns are there, then this technique helps, और otherwise as well आप रुक को एज अ चेकमेट यूज कर सकते हो, मतलब लाइक वी यूज इन चेकमेट्स, यू कैन जस्ट ट्राई टू यूज द रुक फॉर अ ग्रेटर पर्पस। गलती से भी यहाँ पे रुक D1 मत खेल देना कोई भी, बिकॉज इफ यू एम टू गो रुक A6 देन किंग हैज टू ड्रॉप बैक, और यहाँ पे
नो वन शुड प्ले रुक d6 here, क्योंकि रुक d6 खेल दिया तो इट्स लाइक यू आर कन्वेइंग टू द ओपोनेंट दैट आई डोंट नो हाउ, आई डोंट हैव द करेज टू प्ले रुक एंड गेम एंड डिफेंड दिस ब्रिलियंटली, सो आई एम थ्रोइंग इन टॉवल एंड आ बेल मुझे मार, ये वाली सिनेरियो है इस मूव में। कोई मत खेलना इस मूव को, वरना आपको घर आके मारेंगे। ठीक है, चलो। सो रुक a6, यहाँ पे रुक d1 गलत मूव है। ओके, सो लेट्स गो रुक b1 हियर एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक मूव। एंड अब रुक a6 चेक पे यू गो समथिंग लाइक मे बी किंग टू f5, rook b5 check, and king to f6 is possible, but it may leave a little bit too much to cover। ठीक है, rook b3, e4, rook b4, king f5 पीछे आ गए, and if you go check, now notice the difference, अब e5 ने ब्लॉक कर दिया टाइम पे, एंड ऐसे हंसते खेलते वी हैव promoted, I mean made a progress with our pawns till the 5th rank। ऐसे ही चलता रहेगा। Now let's say we go rook b8, okay, not a bad move, rook a7 check, लिमिटिंग द स्क्वायर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किंग c6 और लेट्स या तो बैक रैंक जाना पड़ेगा और ही हैज टू गो किंग c6, एंड इफ ही गोस किंग e6, notice that this rook e8 does not work because of rook e7 blocking the rook। are you able to see it? Rook e8 check is blocked by rook e7, there is no other good move। also you can play king f7, no problem, but why to unnecessarily complicate matters? So play rook e7. If he goes rook h8, f5, rook h6, f6, and after some, this king is out of picture now. So rook cannot handle this alone. And if he goes f7, rook f1, what you have to do is just play a calm rook e8, allow promotion of your white pawn, and this rook has to helplessly capture this pawn. And if you capture with the rook, either make a queen and then checkmate with queen and rook, or if you are wanting to practice some rook endgame checkmates, you can do it as well। Okay, rook e8, rook e8, I am stopping this here because I hope this much is sufficient। ठीक है, ओके गाइस, आपको मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ व्हाट इज द टेक्निक विच आई यूज्ड। सबसे पहला मूव खेलना है f3, ये आपको मैं गुड मूव दे देता हूँ। रीजन इज, आप अगर किंग f4 इज द लाइकली रिस्पॉन्स फ्रॉम योर ओपोनेंट, आपको किंग f2 खेलना है। ठीक है, एंड इफ ही गोस रुक b7, एक वेटिंग मूव खेला था अपन ने। मैंने आपको बोला था या तो e4 पे प्लेस करो, थोड़ा सिंपल है, या इसको लेट अस एंगेज दिस रोक for a greater good, for a greater good of humanity, that is to win the bring for his king, bring the win for his king। A little bit tongue twister, sorry for that। rook a4, king e5 पीछे जाना पड़ेगा, and you go something like e3, rook b2 check, king g3, and फिर उसके बाद भी king d5 भी अगर आता है तो you go king f4, rook b4। चलो आपको एक और लाइन दिखाई देता हूँ, ऐसा क्या मैं प्रो की तरह क्यों बोल रहा हूँ। rook a4 check, king e5, a3, rook b2, हमने इतना देखा, king g3 आया। बात ये है, या तो रुक बी एट डायरेक्ट जाके यहाँ पे आपको चेक देने की कोशिश कर सकता है, बट ही इज अ बिट टू लेट। किंग डी फाइव अगर आने की चेष्टा करता है, गो किंग एफ फोर, देर इज नो रुक बी फोर चेक, एंड इफ ही गोज रुक बी एट, नाउ पुश दिस किंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, किंग ई सिक्स आना पड़ेगा। नाउ प्ले ई फोर, और अगर रुक एफ एट आए, आइदर ब्लॉक इट विद रुक एफ फाइव। मैंने आपको बोला था
Okay. I am very sorry, guys. Where did I stop? और where did my net go off? कोई अनम्यूट करके बता दो मेरे को. हेलो. 30 minutes before. कहाँ पे? 30 minutes before, brother. अच्छा, रुके चेट तक आ गया था ना. ये एक सेकंड, कहाँ तक आया था? रुके 5 पे आया क्या? देखो, रुके 8 तक मिल गया आपको? किसी को कोई डाउट है? चलो कोई नहीं, आपको फिर से ही बता देता हूँ क्या फर्क पड़ता है. E3 खेला अपन ने, रुक B2, किंग G3, किंग D5, किंग F4 ऊपर आए. उसने कहा रुक B8 पे यहाँ पे चेक देने के लिए. ये दूसरी वेरिएशन है. आपको मैंने मेन वेरिएशन दिखा दी, लेकिन रुक एंड गेम में डिफिकल्टी ये होती है कि देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन, हेल लॉट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, तो यहाँ पे एक रुक A5 का मेरे को एक आइडिया आया, और अभी करंटली आई एम हैविंग एन इम्प्रोवाइज्ड आइडिया ऑफ E4 चेक एज वेल. इससे किंग जो है पीछे ही जा रहा है. किंग C5 खेलोगे तो मान लो यहाँ पे रुक A5 अब आए तो किंग D4 और रुक D5 चेक आ गया, तो किंग D4 तो पॉसिबल नहीं है. और अगर यहाँ पे अगर किंग C5 खेला रुक A5 एंड देन किंग D6 भी आए तो रुक D5 चेक, किंग E6 आ रहा है. ओके, एंड देयर आफ्टर यू कैन प्ले किंग E3, रुक B3 चेक, रुक D3 ब्लॉकिंग दिस. ठीक है, किंग E5 F4 चेक, और अगर किंग E6 आए आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर मैं क्या खेल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा ब्रेन फेड हो गया मेरा, आई एम सो सॉरी. रुक D5 कहाँ पे था मैं? हाँ, किंग D6. अबे यार, किंग D6. हाँ जी, आई एम सो सॉरी. रुक D5, मान लो किंग E6 आया, अब आप Not किंग visible. सॉरी 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 क्या बोले? हेलो, क्या बोले? Presentation is not visible. प्रेजेंटेशन नॉट विजिबल. Yes. इज इट फॉर एवरीबॉडी? Yes, brother. यार, मेरे एंड से जा रहा था एक्चुअली, आई एम सो सॉरी. अच्छा, अब दिख रहा है? ठीक है. कौन कौन है? अक्षत, बालाजी, श्रीकर और सुजल भाई. प्रणव पाटले चले गए, नो इश्यूज. अच्छा चलो, थोड़ा पहले से ही देख लो. ये स्टार्टिंग पोजीशन थी. F3 इज द बेस्ट मूव. ठीक है, किंग F4 आए, किंग F2 आए, रुक B7. एक वेटिंग मूव खेला ब्लैक ने यहाँ पे. देख रहा है व्हाइट क्या कर रहा है. रुक A4, यहाँ पे किंग F5 खेला ब्लैक ने. यहाँ पे आप E4 खेलने की गलती मत करना, बिकॉज दिस गिव्स अ ब्लैक सम पोजीशन हियर. ठीक है, आपको E3 खेलना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ाना है. पॉन को 2 स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं फर्स्ट मूव में, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है पोजीशन के अकॉर्डिंग खेलना. तो आपको एक ही कदम बढ़ाना है, लालची नहीं, बिल्कुल नो लालच. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड E3 खेला अपन ने, रुक B2 आए, किंग G3 आए. ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है. मान लो रुक B1 आया. अच्छा, रुक B1 तो हमने देख लिया ना. वेरिएशन कौन था? बूम 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 F5. अच्छा चलो, E5 पे थे ना वी आर. E3 हमने फिर भी खेला, रुक B2, किंग G3, किंग D5. अब हम ऊपर गए, 2 ऑप्शन है, या तो F4 खेलो. ठीक है, जहाँ पे अगर रुक B1 आए तो किंग F3 आके आप कर सकते हो, एंड या किंग F4 भी खेल सकते हो, जिससे कि E4 आपका टारगेट रह सकता है. अब आपने रुक B8 खेला, रुक A5 हमने चेक दिया. क्यों? क्योंकि हमें किंग को पीछे भगाना है. ठीक है, किंग पीछे चला गया, और यहाँ पे किंग C4 खेलने का लॉस्ट ये है, बिकॉज इफ E4, रुक F8 एंड रुक F5, यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई. मैंने आपको बताया था 3 यूनिट्स का आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है, एक एक यूनिट की डायगोनल है, आई मीन साइड्स हैं. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन जाए, व्हाइट का विनिंग कंफर्म हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे किंग E6 इज द ओनली मूव विच प्रोलॉन्ग्स द फाइट फॉर ब्लैक. एंड नाउ E4 ही बेस्ट मूव है ना, यहाँ पे E4 खेल सकते हैं. ठीक है ना, E4, रुक F8. अगेन आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो,
रुक F5 मार लिया तो ब्लंडर है, बिकॉज अपन ऑपोजिशन टेक्निक, इफ यू गाइस रिमेंबर, वी कवर्ड इन 14th of September क्लास। ऑपोजिशन याद है ना सबको? ऑपोजिशन से जीत जाना है इस गेम को, ठीक है? दिखाते हैं आपको ऑपोजिशन कैसे जीतना होता है। किंग F7, किंग E5, किंग E7, F6, किंग F7, किंग F5, किंग F8, ये आए, ठीक है? अब अब अपने दूसरे पॉन का भी इस्तेमाल करें, यूज योर सेकेंड पॉन एज वेल, क्योंकि इफ यू नोटिस F7 किंग F8 में, और आपने यहाँ पे किंग F6 खेला तो स्टेलमेट हो जाएगा, ठीक है? डोंट डू दिस। इंस्टेड अपने सेकेंड पॉन का इस्तेमाल करें एक वेटिंग मूव खेलने के लिए। इसमें वेट करना इंपॉर्टेंट है। F4 ब्रिलियंट मूव, और अगर किंग F8 आए अब F7 पुश करें, एंड दिस एंड क्वीन, रानी आ गई बोर्ड में, एंड देन देयर आफ्टर दिस नाइट फॉर्मेशन, एंड वी आर डन फॉर द मेट, ठीक है? जीत जाएंगे, जीत जाएंगे ना? ठीक है, कोई जीत तो नहीं पाएगा। स्टेलमेट मत कर देना भाई, मेरा बदनाम कर दोगे आप लोग। 20 दिन बहुत मेहनत करी है, नाम बदनाम मत करना, चेकमेट कर देना, अंदर की बात है, बता रहा हूँ। चलो अपन थोड़े स्पाइसी हो गए यहाँ पे। किंग C5, रुक A5, किंग D4, रुक D5, और अगर ये एक वेरिएशन है जहाँ पे वाइट ऑब्वियसली जीत रहा है, हर जगह से वाइट जीत रहा है, बस टेक्निक की बात है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने रुक F5 पे किया था ना, तो यहाँ पे रुक F5 पे रुक नहीं लेना, आपको यहाँ पे रुक H8 खेल लेना है, ठीक है? और थोड़ा सा रिस्क बन सकता है, किंग G5 आए तो रुक G8, अच्छा है, थोड़ा सा रिस्की तो है, मतलब एक सेकेंड, एंड यहाँ पे अगर किंग G4 आए, रुक यहाँ पे ब्लॉक कर दे रहा हूँ, एंड रुक को अब यहाँ पे डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। अब F4 आना है, ठीक है? और रुक A1, F4 क्यों आना है? रीजन ये है, मेरा आइडिया है ना, रुक G6 देने का है और किंग को वापस पुश करने का है कॉर्नर पे, जिससे कि किंग F5 पे आ जाए। आइडिया समझे आप लोग गाइस? चलो मैं F4 से पहले आपको पोजीशन दिखाता हूँ। अब ये देखो, इफ ब्लैक ट्राइज टू प्ले रुक A1 एंड ट्राइज टू चेक यू, ठीक है? चेक करने दो, कोई बात नहीं। हमारा आइडिया है, हम इस रुक को G6 पे रखेंगे और किंग जो है ना, फॉरवर्ड नहीं आनी चाहिए, बैकवर्ड्स जाना चाहिए। व्हाट which move facilitates the backward movement of king? Or let me rephrase this question, which move facilitates or forces the black king to go backwards? तो इसके लिए you need the concept of squares। अब ये वाला स्क्वायर देखो E5, ये सिर्फ रुक से कंट्रोल्ड है। मेरे दिमाग को ये सूझा कि अगर मैंने F4 खेला यहाँ पे, तो एक अगले मूव में अगर चेक आएगी तो ये किंग जो है ना, यहाँ पे D5 पे आ रहा है ना E5 पे आ रहा है, पीछे ही जाना पड़ेगा बेचारे को, ठीक है ना? वो मान लो किंग F7 भी आ जाए तो हम किंग F5 उठा के मार देंगे, क्योंकि हमें पता है अगले मूव में ब्लैक रुक A1 खेलने वाला है, दैट्स इट। तो इसलिए हमने यहाँ पे F4 खेला टू कंट्रोल दिस E5 स्क्वायर। ध्यान से देखो, वी आर कंट्रोलिंग दिस E5, एंड डू यू नो द टर्म फॉर दिस कंट्रोल? हमने थ्रेट को एंटिसिपेट किया और उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर लिए। इस टर्म का नाम क्या है बताओ? आज आपका थोड़ा क्विज भी ले लेते हैं। सुजल ब्रो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेक्निक? आई ऑफन रेफर टू दिस डेली। आप बताइए, आप बताएंगे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। हेलो, कोई सुन पा रहा है मुझे? मेरी इंटरनेट तो नहीं चलेगी? नहीं यार, बढ़िया है, बताओ। श्रीकर, बालाजी, कोई तो बताओ यार, याद नहीं है क्या? अरे यार, क्या बंदे हो, अरे बताओ, चैट में लिख दो भाई। क्वेश्चन नहीं पता क्या? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टर्म विच आई यूज डेली
for a move which we make on the board, anticipating a threat in future, and to prevent that threat from happening, we make that preventing move. ठीक है, we make a preventive move for a threat that we anticipate which will happen in the future. ठीक है, अब इस मूव को क्या कहते हैं? अच्छा, आपको एक हिंट दे देता हूँ। व्लादिमीर क्रेमनिक के बारे में मैंने बात की है कभी? A word I don't know, nearly know but I don't know. Okay, व्लादिमीर क्रेमनिक का वर्ड सुना है आपने? विशी आनंद के फॉर्मर, I mean a good friend, as well as they were the former world champion finalist. ठीक है ना? अभी वो उज्बेकिस्तान के भी कोच हैं। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। अक्षत ब्रो, आपको पता है? अक्षत ब्रो, आर यू देयर इन द मीटिंग? नो इश्यूज। चलो, प्रोफिलैक्सिस गाइस, प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्टिक मूव। आपको मैं गूगल सर्च दिखाई देता हूँ आज। प्रोफिलैक्टिक मूव, चेस, मीनिंग। स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं दिख रही होगी, रुक जाओ। ये देखो, prophylactic move. A prophylactic move in chess is a move or a series of moves that a player makes to prevent their opponent from taking some action. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आशीर्वाद हो। अब कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। गूगल ने अब मेरी चीज कंफर्म कर दी। सो आई नो चेस, राइट? आप एक अच्छे नहीं, अच्छे तो नहीं बोलना, अपने बारे में नहीं बोलूंगा। यू आर लर्निंग फ्रॉम अ पर्सन who knows what is prophylaxis. ठीक है, he is not wrong. Okay, you can be confident about his credentials. इंटरनेशनल FIDE रेटेड प्लेयर है, 1500 रेटिंग है, बस वो बात अलग है। बट खेलना आता है चेस। ठीक है, हमारी बात है मानो। मैंने जो बोला था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज अ मूव और सीरीज ऑफ मूव्स दैट अ प्लेयर मेक्स टू प्रिवेंट देयर ओपोनेंट फ्रॉम टेकिंग सम एक्शन। हमने क्या बोला? अपने पोजीशन पे जाते हैं, इसी शब्द को पोजीशन में रिलेट करते हैं। क्या बोला हमने? We said we played f4 to prevent this king from going to e5 because we anticipated that rook a1 will be the next move of black. And in order to facilitate rook a1, we are giving black an opportunity to play rook a1 because we cannot prevent it. But at the same time, we are asking the black king to back off. वही काम कम कर रहे हैं। ठीक है, और इसलिए ब्लैक किंग क्योंकि बैक ऑफ कर रहा है, हमने एक चीज दी और एक चीज ले ली ब्लैक किंग से। दैट इज नोन एज प्रोफिलैक्सिस। वी आर एंटिसिपेटिंग अ थ्रेट ऑफ किंग e5 इन द फ्यूचर, एंड टू मीट दैट थ्रेट, to combat that threat, we are playing f4 to control e5 so that we can give rook g6 check and king goes backwards and then leap on with our king with the f5। बोर्ड पे देखते हैं, मान लो रुक a1 खेला, अब रुक g6 आया यहाँ पे। ठीक है, रुक किंग f7 आए, किंग f5। आइडिया जबरदस्त था ना गाइस? बढ़िया था आइडिया। ये होती है प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैंने आपको आज गूगल डिक्शनरी मीनिंग भी दिखा दिया। प्लीज मत भूलिए, चेस क्विज होने नहीं वाली, बट द पॉइंट इज अगर पोजीशन ऐसा कुछ आए आपके सर्टिफिकेट पेपर में, आई मीन सर्टिफिकेट एक्सरसाइज में, तो आपको प्रोफिलैक्सिस का आइडिया होना जरूरी है। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब यहाँ पे मान लो चेक आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना लो e5, और यहाँ से अब कोई चेक नहीं आ रहा, रुक बेचारा हेल्पलेस पड़ा हुआ है, रुक a1 खेलो और यहाँ पे रुक b6 खेल लो, या रुक f6 खेल के फिर रुक b6 भी खेल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, किंग e7 और रुक b6, या रुक b6 डायरेक्ट भी आ जाओ, बहुत प्रिसाइज मूव है। रुक h1 एमिंग टू गिव चेक हियर, सामने सामने है, देखो ध्यान से देखो,
king on f7 and king on f5 are on front, it's good. Right time to give check. Rook b7, king to e8, एंड यहाँ पे आप किंग e6 खेलो, मेट इन वन थ्रेट दे रहे हो. रुक h6 आए, किंग d5 आ जाओ, कोई चेक नहीं आ रहा. रुक a6 आए, f5 दो, रुक a5, किंग e6. अरे यार एक सेकेंड, थोड़ा मैस कर दिया क्या. किंग d5, यहाँ पे चलो थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा, लेकिन घूम के आ जाएंगे. थोड़ा कट ऑफ हो गया, बट किंग इज ऑन द बैक रैंक. मान लो यहाँ पे रुक टू, सॉरी यहाँ पे रुक टू h4 आ गया, तो देन वी हैव समथिंग लाइक किंग g3, रुक a4, एंड थोड़ा सा कट ऑफ हो गया आई गेस. आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई. देखो हमसे मिस्टेक हो जाती है कभी कभी. आई थिंक आई पुश द f5 टू सून हेयर. आपको मैंने खुद ही मिसलीड कर दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ठीक है, मान लो रुक a5, अच्छा रुक a6 खेला है, किंग e4 आ जाओ, रुक a4, अब किंग f5 आ जाओ. ठीक है, अब किंग f6 आके रुक a6 चेक को e6 से बचा लेना है, फिर f5 खेल लेना है, सो ऑन. चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ. रुक b6 खेला ना अपन ने, रुक h1, रुक b7. आई थिंक यहाँ पे क्योंकि रुक इस साइड में है ना, तो मे बी वी कैन कम f6 एज वेल डायरेक्टली, जिससे कि रुक h6 आए तो किंग g5 और रुक a6 सिक्स रैंक पे रहेगा. एंड नाउ f6 अगर आए तो मान लो रुक b1 आया, रुक a1 सॉरी, तो किंग f6 आ जाओ, और अगर चेक आया e6 आ जाओ. दिस इज मोर प्रिसाइज, दिस इज मोर प्रिसाइज. आई एम सो सॉरी टू मिसलीड यू पहले. ठीक है ना, ये थोड़ा प्रिसाइज है. फिर से आते हैं यहाँ पे, फिर से आते हैं अपन. ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको प्रोफाइल एक्सिस बताया था, राइट. कहाँ पे चले गए प्रोफाइल एक्सिस, f5, हाँ ये रहा. इस मूव पे मैं आपको ब्रिलियंट दे देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा. रुक a1, रुक g6, किंग f7, किंग f5, रुक a5 चेक, e5 आया, रुक a1 आए, रुक b6 खेला अपन ने, to give a check and force the king to the back rank. and rook h1, rook b7. यहाँ पे ना किंग e6 वाली लाइन में आपको क्या करूँ, मिस्टेक लिख देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा, सॉरी नॉट किंग e8, किंग e6 इज अ मिस्टेक, नॉट किंग e8, आई एम सो सॉरी. किंग e6 को मैं मिस्टेक लिख देता हूँ, बिकॉज आपको याद रहेगा कि मैंने क्यों मिस्टेक लिखा. रुक h6 वगैरह ये जो लाइन है ये आप पढ़ लेना. ओके, किंग f6 ऑन द अदर हैंड इज अ गुड मूव. क्यों, रुक f6, रुक h6 आया, आप किंग g5 खेलने के लिए एब्सोल्युटली तैयार हो. अटैक कर रहे हो रुक को, और अब मान लो यहाँ पे रुक a6 खेल दिया उसने, f5 खेल सकते हो अब. ठीक है, और अगर उसने रुक e1 खेला, f6 पुश मत पुश करना, या तो e6 खेलो, बेस्ट मूव है. जैसे कि अगर रुक g1 आए तो यू गो किंग f6 एंड मेट इज ब्लूमिंग लार्ज. ठीक है, या तो e6 खेलो और डायरेक्टली गो फॉर किंग f6, एंड व्हेन ही गोस रुक a6 चेक, गो e6, बात वही पढ़नी है. ठीक है, एंड अभी आपको फिनिश भी करना है ना गेम को. मान लो रुक a1 आए तो रुक, ये चेकमेट तो है ही अपने पास, तो रियलिस्टिक मूव यहाँ पर e6 पे है, रुक a8. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक सिंपल मूव खेलनी है, फिनिशिंग ब्लो. आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ फिनिश करने के लिए इस गेम को. कैन यू फाइंड द क्लीनेस्ट, प्रिटीएस्ट एंड द बेस्ट मूव हियर. रुक h7, वाह रे मेरे शेर, wow. Any other people who want to give any good opportunities here? Rook e7, rook f7, rook d7, rook g7, rook h7. ना ना भाई, देख एक जवाब. रुक g7 गलत इसलिए है क्योंकि किंग f8 आ रहा है. ठीक है ना, अच्छा लेकिन ठीक है, e7 भी खेल दिया, e7 किंग e8, रुक e8. अरे हाँ ठीक है, चलो रुक g7 भी सही है. Practically, rook on seventh rank, every move is best, every move is good, but best जो है ना rook h7 है. rook h7 फिनिश ऑफ मूव है, अगली मूव में मेट हो रही है, और मान लो किंग यहाँ पे दौड़ भी रहा है, रुक h8 लेंगे, एंड बाय बाय रुक, बाय बाय रुक, गो टू हेवन. गो टू हेल या गो टू हेवन आपके हिसाब से, जो भी हो. बाय बाय रुक, बाय बाय रुक.
ओके, थोड़ा सा ट्रैश टॉक आज ज़्यादा है, ठीक है। जीत जाओगे ना भाई, जीत जाओगे ना। यहाँ से आगे E7 E8 रानी बना लेना, एंड फिर रानी और रुक को डायगोनल में यूज करके चेकमेट कर देना, कर दोगे ना। इज देयर एनीवन हु डज नॉट नो हाउ टू चेकमेट विद क्वीन एंड रुक? आपको फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर आपने एक काम नहीं सीखा तो। चलो, तो भाई रुक एंड गेम 2 पॉन्स हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सीख लिया, ठीक है। कुछ नहीं करना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो और किंग को बीच बीच में घुसा दो अंदर, जहाँ पे भी स्पेस हो, स्पेस कंस्ट्रेन हो, ठीक है। और अपने रुक को एक रुक चेकमेट शील्डिंग, रुक चेकमेट देने वाले एक यंत्र की तरह, एक अर्जुन का गांडीव जैसा था, वैसे अपने हाथी को अपने किंग का गांडीव समझ के उसको स्ट्रेट रखो और प्यादों को सारथी समझो, ठीक है। एंड जस्ट गिव अ चेक एंड ट्राई टू मेक द किंग ब्लैक किंग। ब्लैक कैन पुट अप अ स्टर्न रेजिस्टेंस, उसका रुक को इधर उधर मूव करना होगा, उसके चेक को आराम से ऐसे जस्ट पुश कर दो। जब भी चेक आने की संभावना हो, बस किंग के लिए एक एस्केप स्क्वायर तैयार रखना, जिससे कि आपके फाइल और रैंक दोनों जगह अपना जो किंग है एकदम सेफ रहेगा, साउंड रहेगा, और और ब्लैक को ट्रोल करता रहेगा। आपके लिए विन निश्चय है। अगले टूर्नामेंट जब भी होंगे हमारे मैवरिक्स के, अगले अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अपने अर्जुन गांडीव और पॉन्स को एज देयर चैरियट, ठीक है ना, सारथी और चैरियट। कृष्ण जी आप हो, बिकॉज यू आर अप्लाइंग द ब्रेन, तो आप कृष्ण जी हैं। आपका रुक, आपका हाथी गांडीव है, और आपका जो किंग है राजा, वो अर्जुन है, ठीक है ना। ऐसे समझ के बहुत प्यार से इत्मीनान से ब्लैक को फांसी दे दो, दैट्स इट, ठीक है। अपना रुक एंड गेम कृष्ण का गोपिका कहाँ है ब्रो? अब शांत रहे यार, रिकॉर्डिंग में चल रहे हैं वैसे भी, ध्यान से बात करो। श्रीकर, वाई दिस मच वेंजेंस? चलो भाई, आज का ना एंड गेम है, ये लास्ट एंड गेम है, ठीक है। 3 मिनट रह गए 9:30 में, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी फ्री, ठीक है। हाँ यार, थोड़ा सा व्यूज बढ़ाने के लिए आई शुड जोक, राइट। छोड़ो, कोई नहीं। नीलगिरी थोड़ा सा फेमस हो रहा है अच्छी खासी। CSL में फॉलो द लाइव स्ट्रीम, शामा की चैनल में होगा, डिटेल्स अभी आई नहीं है, जब भी होगा फॉलो द लाइव स्ट्रीम। 1 घंटे का अरेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीग ए विल स्टार्ट फ्रॉम 8:45 to 9:45 एंड लीग बी विल स्टार्ट फ्रॉम 10 to 11। आई मीन इट विल, सारे PM में है, कोई भी सुबह नहीं है, सुबह मत समझो, रात को है सारी चीज़ें। और नीलगिरी के मैचेस संडे को फर्स्ट मैच है, बाकी सारे मैच सैटरडे को है। 28, 5, 12, 19 और 26 को नहीं है, 19 को लास्ट मैच है, ठीक है। देखो 22 है, फिर 28 आएगा अपना सेकेंड मैच, फिर 5, 12 और 19, ठीक है। दिस इज द थिंग, फॉलो करो, सपोर्ट करो टीम को, अच्छे खासे प्राइजेस मिल रहे हैं सबको, एंड मैंने आई होप मैंने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। हमारा एक थिंकिंग तो है, अभी 16 लोग एज ऑफ नाउ, सब लोग अवेलेबल हैं, बट अगर कोई बंदा बाय चांस विड्रॉ कर जाता है इवेंट में, हमने फाइनल टीम्स भी सबमिट कर दी है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी विड्रॉ कर जाता है तो आपकी पूल से हम एक बंदे को रिप्लेस कर लेंगे, एक या दो बंदे को, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी का भी विड्रॉ करने का, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे एंड दिस, आप नीलगिरी के फ्यूचर बन जाओ या ना बनो वो आपकी मर्जी है, बट दिस चेस एंड गेम विल बी विद यू फॉर एवर, आई होप सो। आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड आई होप आप किसी ना किसी दिन हमारे तरह 1800, 1900, 2000 के लेवल पे पहुंचोगे, अगर चेस रेगुलर खेलते हो तो। नहीं भी पहुंचे तो ठीक है यार, 1000, 2000, 1000, 1200, 1500 बहुत है, कोई बात नहीं, हॉबी की तरह रख लो, सबके लिए इट्स नॉट ब्रेड एंड बटर, ठीक। चलो, वी हैव टॉक्ड इनफ, 1 ही मिनट रह गया,
चलो, बात यह है, इस पोजीशन को देखो, व्हाइट पॉन इज ऑन A7, रुक ऑन A8 और ब्लैक रुक ऑन A1 कंट्रोलिंग दिस स्क्वायर, ठीक है, और किंग C2 पे है, किंग G7 पे है ब्लैक का। ये पोजीशन ऑब्जेक्टिवली ड्रॉ है भाई, भाइयों और बहनों, और सॉरी बहन तो कोई नहीं है, भाइयों, ये पोजीशन ऑब्जेक्टिवली ड्रॉ है, ठीक है ना। लेकिन व्हाइट पता है खेल सकता है इसको आराम से। प्रॉब्लम क्या है इस पोजीशन में, मैं आपको बता देता हूँ। ये हाथी जो है ना, दिस रुक कैनॉट मूव एनीवेयर। लेट्स से इट गोज टू रुक B8, इमीडिएटली कैप्चर हो जाएगा रुक टेक्स A7 से। मंजूर है ये बात आपको? समझ आया? यहाँ पे, इधर या इधर, कहीं पे भी मूव हो जाए, ये रुक ये पॉन पिट जाएगा और ये डेड ड्रॉ एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप अपने ओपोनेंट को बस फ्लैग करके जीत सकते हो। अगर 3+0 होगा तो 3+2 में तो फ्लैगिंग का भी ऑप्शन नहीं है। तो भाई ऑब्जेक्टिवली बात कर लेते हैं, दिस इज अ ड्रॉ, ठीक है। और वाइट से ये पोजीशन ड्रॉ ही होगा हमेशा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे किंग B2 खेल सकते हो, ठीक है ना। बात ये है, कैन एनीवन सजेस्ट मी अ गुड मूव हियर फॉर ब्लैक? गुड मूव हियर, गुड मूव, गुड मूव बताना है, बैड मूव मत बताना। बैड मूव बताओगे पेनल्टी लगेगा, गुड मूव बताइए। और पेनल्टी लगेगा जरूर, आपसे एक चॉकलेट की पेनल्टी लगेगी। बताओ भाई, कितना टाइम लग रहा है? खाना खाने जाना है यार, बताओ। अबे रुक नहीं पिट रहा दिख रहा तेरे को? किंग F7 कह रहा है। श्रीकर ब्रो, व्हाट इज दिस? यू आर प्लेइंग फॉर CSL, प्ले रिस्पॉन्सिबली मैन। रिप्लेस कर दूं क्या आपको? लेट द रुक गो, वाह। लेट द इटर्नल्स टेक अवे माय रुक, मेरा ब्लैक किंग जन्नत जाएगा हैं। अबे ड्रॉ करना है भाई, विन नहीं देना वाइट को। यार पता नहीं क्या बंदा है। श्रीकर सीरियसली बताओ क्या मूव है? अब थोड़ा टाइम हो रहा है, मजाक बहुत कर लिया, जरा बताओ जल्दी से। बालाजी, सृजल, सही है सबका। हाँ हाँ, वाइट हो नहीं, ब्लैक 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 को खेलना है। रुक एच7? अबे कहाँ भाई रुक, ब्लैक रुक इज ऑन A1 ब्रो, व्हाट द हेल। रुक H1, अच्छा चलो भाई, रुक H1। श्रीकर मैनेज टू चूज द वर्स्ट पॉसिबल स्क्वायर। समझाते हैं वहीं से ही आपको। रुक H1, बाय द वे शाउट आउट टू बोथ श्रुजल एज वेल एज बालाजी। रुक A6 सही मूव है। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको कितना दूं? एक दूं, दो दूं? दो दे देता हूँ, थोड़ा जेनरोसिटी में हूँ मैं, ठीक है ना। ओनली ड्रॉइंग मूव है, ओनली नहीं मतलब A4 A5 A6 कहीं पे भी जाओ ड्रॉ है, ठीक है। तो इस फाइल पे रहना आइडिया है। अब श्रीकर ने क्या गलती किया है? चलो भाई, श्रीकर भाई थोड़े से केयरफुल रहो। किंग B2 अगर आए ना, जो कि प्रमोट वेरिएशन कर देता हूँ मैं, अगर यहाँ पे रुक H1 आए, बहुत प्यारा वेरिएशन आ रहा है। कैसे बनाएगा क्वीन बताओ? बहुत प्यारा प्यारा वेरिएशन है। टैक्टिक्स गाइस, कैन यू फाइंड द ओनली विनिंग मूव, ओनली कह रहा हूँ, ओनली विनिंग मूव फॉर वाइट, ओनली विनिंग मूव। जल्दी बताओ, जो भी हो जल्दी बताओ, अनम्यूट करो, जल्दी बताओ। बालाजी आप बता दो, श्रीकर आप ही बता दो, जल्दी बताओ। क्या? वाइट आर एनी अंटिल एफ, जल्दी बताओ यार। अक्षत भाई आप हो मीटिंग में, आप भी बता दो। चलो शशांक, शशांक आप हो तो बता दो जल्दी। अरे कोई भी बता दो यार, इतना मुश्किल थोड़ी है। रुक B8, रुक B8 सही है यार, लेकिन एलिगेंट नहीं है। तो यार कुछ भी लिख दे, क्या कुछ भी मतलब कांट फाइंड क्या होता है? क्या ऐसे बैठे रहोगे क्या बोर्ड पे जब आप खेलोगे? C8 E8 ना, कोई भी गलत नहीं है, मतलब सब सब ठीक है,
एलिगेंट नहीं है, एलिगेंट मूव खेलो, एलिगेंट, एकदम स्टाइलिश। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नो नो इश्यूज गाइस, थोड़ा स्टाइलिश मूव खेलो, स्टाइलिश। अरे मेरे को 1 सेकंड में दिख गया, आपको तो 5 सेकंड 10 सेकंड में दिखना चाहिए ये चीज। टैक्टिक्स ही सॉल्व करते क्या आप लोग? जब मैवरिक्स में मैं भेजता था। ओह चलो, गुस्सा दे रहे हो तो गुस्सा तो नहीं आ रहा, बट ठीक है। A5 मतलब, चलो ठीक है। टाइम अप। रुक 1 2 3 4 5 6, ये मूव थी। लो एक और एक्सक्लेमेशन ले लो, डबल एक्सक्लेमेशन देने इस बार। समझ आया आइडिया? डिड एनीवन अंडरस्टैंड द आइडिया गाइस? उफ उफ। चेक एंड किल द रुक, यही तो बोल रहा हूँ तब से। एलिगेंट मूव क्या बोल रहा हूँ, चीख रहा हूँ भाई। एलिगेंट मूव, एलिगेंट मूव, ऐसे ढूंढना होता है चेस में। किंग टेक्स और रानी, जा तू मेरी रानी, तुम्हारी सल्लू, देश देश, गेम ओवर। और एल टेक्निक से क्वीन से चेकमेट कर देना, वो तो आता ही होगा। एलिगेंट मूव फाइंड करना था बस। किंग एनीवेयर, क्वीन टेक्स H1, आपके लिए मेट भी कर देते हैं साहब। क्वीन D5, किंग G6, किंग C3, क्वीन E7, क्वीन C6, किंग D8, क्वीन B7, किंग E7, D4, this एंड चेकमेट। ठीक है, हो गया भाई। एलिगेंट मूव फाइंड करना होता है तो एलिगेंट होना चाहिए। देखो, अब आपने जो बोला था रुक B8, रुक C8, सब गलत नहीं है, लेकिन ये वापस मान लो यहाँ पे कहीं गलती से भी, मतलब वापस भी आ जाए, कोई भी गलती से वापस आ जाए, जब आप इंस्टेंटली गेम को खत्म कर सकते हो, इंस्टेंटली खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे। मान लो यहाँ पे चेक आ गया, ये लो एक और चेक आ गया, और यहाँ पे लेट से यहाँ पे रुक A1, रुक A3 खेल लिया, ये लो क्वीन बनाया, मैंने रुक से मारा, आपको रुक, मान लो रुक की चेकमेट नहीं आती, मैंने सिखा दिया आपको फर्स्ट डे में, आनी चाहिए, आपको नहीं आती, एमलेसली चेक दे रहे हो, 50 मूव में ड्रॉ करा दिया, ये नहीं करना चाहिए ना। तो इसलिए एलिगेंट मूव ढूंढना जरूरी है हमेशा। ठीक है, रुक G8 चेक आया, और यहाँ पे रानी फोर्क मार गई, ये भी ले गई, और अपने राजा के लिए एक नाइस वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द लाइफ विद दिस, आफ्टर लाइफ विद दिस किंग। ठीक है, ये बात थी। अब आपको करेक्ट वे दिखाता हूँ। करेक्ट वे इज द वन विच वी हैव टू लर्न। किंग B8 में एज यूजुअल यहाँ पे रुक A4, A5, A6 कोई भी चल जाएगा। रुक A6 एब्सोल्यूट बेस्ट मूव है। श्रुजल ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड बालाजी ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मान लो यहाँ पे किंग B3 आए, इस किंग को ना कभी भी टच नहीं करना चाहिए गाइस। द मेन मोटो ऑफ introducing this chapter into the endgame studies is this king should never be touched। या अगर टच कर दिया गलती से भी, तो इसको किंग H7 से अलावा कहीं नहीं खेलना। जब भी इस कॉर्नर पॉन का प्रेजेंस हो ना, हमेशा योर किंग मस्ट रिसाइड ऑन आइदर G7 और H7। ठीक है, आपको गलती दिखाता हूं। अगर आपने यहाँ पे किंग F7 खेला जोश जोश में, ये लो रुक H8, डबल एक्सक्लेमेशन, जीत गए, जीत गए ना। विनिंग मूव है रुक H8। यहाँ पे आपको पूछना इसलिए नहीं था मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है आप गेस नहीं कर पाओगे इसको। हो सकता है आप गेस भी कर सकते थे, बट दिस इज द आइडिया। इज इट विनिंग गाइस? हाँ या ना बोलो जल्दी। विनिंग है, विनिंग है। ओके, रुक टेक्स A7, ये लो भाई रुक H7। थैंक यू फॉर द, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट नोन एज? कॉन्सेप्ट का नाम बताइए। पिन का उल्टा क्या होता है? कॉन्सेप्ट का नाम बताइए जल्दी प्लीज। अरे भाई प्रोफिलैक्टिक। अब एक चीज बताई दूसरी चीज पे क्यों जा रहा है?
इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पिन का उल्टा, पिन का ऑपोजिट, स्क्यू। आगे स्क्यू, यू आर राइट। स्क्यू एंड विच वर्ड? स्क्यूअर, स्क्यूअर भाई, स्क्यू प्लस ई आर इज स्क्यूअर, करेक्ट। बंदे को स्टैटिस्टिक्स से याद आ गया, नाइस। स्टैटिस्टिक्स के एविड स्टूडेंट हो गया स्ट्रूजल। चलो कोई नहीं। स्टैटिस्टिक्स में आपको मैंने बताया था ना, राइट स्क्यू, लेफ्ट स्क्यू, नॉर्मल बेल लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, वही चीज है स्क्यूअर, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्क्यूअर वेयर किंग इज बीइंग चेक्ड एंड दिस रुक इज बीइंग कैप्चर्ड, ठीक है भाई। सुजल भाई अपने सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहे, थैंक यू सुजल। बट इवन इफ वी, हाँ हाँ दिखा रहा हूँ भाई, बा दिखा रहा हूँ, ठीक है। किंग एच सेवन, सॉरी यहाँ पे किंग एफ सेवन आए। आपने अगर रुक एच एट खेला, ब्रिलियंसी है, ठीक है। आपने मान लो किंग जी सेवन में खेल लिया, ब्लैक कहेगा यार, व्हाइट कहेगा मेरे को बस एक ही तो विंडो चाहिए थी, तूने दे दी मेरे को एक विंडो, रानी बना लूंगा मैं, कैप्चर करो। अब ये भी प्रोटेक्ट हो गया एंड ये भी हैंगिंग है, टेक्स टेक्स। आई होप यू नो द रुक एंड गेम नाउ एंड यू कैन चेकमेट द ब्लैक मोनार्च, ठीक है। नाना बिफोर दैट, वेयर भाई, इधर, इधर, किधर, क्या लिखा है तुमने? बट इवन इफ वी डोंट मूव द किंग, कैसी बातें कर रहे हो? रुक D8 पे आए तो रुक टेक्स A7 आ जाएगा ना, दिखा देता हूँ आपको बोर्ड पे। अगर आप मान लो कोई भी रैंडम मूव खेलिए, रुक A5, रुक D8 आया तो टेक कर लोगे ना, यहाँ पे चेक नहीं है ना बाबू। और यहाँ पे आप रुक D7 नहीं दे सकते, अपने रुक को थोड़ी दोगे बलिदान, है ना, बात समझो ना। डिफरेंस इज देयर, difference is there na. If your king is in f7 here, then you go rook h8 which is behind the back of the king, but यहाँ पे forward है ना, वो बात समझो यहाँ पे, ठीक है। this is the difference, a few minute differences but ये थोड़ा basic है, okay। चलो, always remember this rule कि never rook move this rook away, पहला रूल, और never move this king to, यहाँ पे रुक A6 था ना, नेवर मूव दिस किंग आउट ऑफ दिस G7 एंड H7 थिंग, ठीक है। दिस और दिस, बस ये दो स्क्वायर किंग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप F7 आए तो रुक H8 आ रहा है, ठीक है। और आप कहोगे साहब मान लो G6 या H6 आए तो तब क्या होगा? तब तो चेक आ रहा है, सिंपल, तब चेक आ रहा है और अगेन रानी प्रमोट होगी एंड देन बॉस रुक एंड गेम आनी चाहिए आपको चेकमेट के लिए। आती है ना भाई सबको, दिखा दिया है आज भी, फर्स्ट डे देख लो, नहीं आती है तो सीख लो, काम आएगा टूर्नामेंट में, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, रुक इसी फाइल में रहेगा और किंग जो है H7 और G7 इन दोनों स्क्वायर्स में ही रहेगा। ड्रॉ है, जब तक भाई ड्रैग करना चाहे करते रहे। किंग B3 खेलेगा, किंग H7 खेल लो, किंग B4 खेलेगा, किंग G7 खेल लो, और किंग B5 आए, ये किंग H7 मत खेल लेना जल्दी से भी, रुक A1 आ जाओ, बस ये चलता रहेगा सिलसिला 50 मूव तक एंड इट विल बी अ ड्रॉ, ओके गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यही बताना था। whenever this corner pawn comes after a long grinding middle game, don't think for even a 1 second. of course there are some exceptions जहाँ पे pawn होता है बीच बीच में, मतलब मान लो यहाँ पे एक F7 pawn भी है ब्लैक का और G6 में भी pawn है, तो आप किंग को ऊपर ला सकते हो, बट वो थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है ना। वो पोजिशनल डिमांड्स है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो हम एंड गेम पार्ट 2 पे करेंगे ऐसा पोजीशंस का डिस्कशन, जहाँ पे मैं एंड गेम और अच्छे से सीख के आ जाऊँगा, ठीक है, आपको भी सिखाने के लिए, क्योंकि भाई नॉलेज होगा तभी तो मैं सिखा पाऊंगा, दैट्स द ओनली थिंग। मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है एंड टू माई सरप्राइज, टू योर सरप्राइज सॉरी, आई हैव फॉलन विक्टिम ऑफ दिस टेक्निक, फॉर नॉट फॉलोइंग दिस टेक्निक मल्टीपल टाइम्स इन द सेंस, एक बार ओवर द बोर्ड भी हुआ था जहाँ पे मेरी तबीयत खराब थी एक एक्सट्रीम विंटर में और मैं इतना एलिमेंट्री थिंग मिस कर गया था, एंड अभी ऑनलाइन में भी पहले होता था, आजकल होपफुली रेक्टिफिकेशन हो गई है इस चीज़ का। तो आपको मैंने बिल्कुल यहाँ पे क्रीम में दे दिया, रुक को ए फाइल में ही मूव करना है, ना बी फाइल ना सी फाइल, नॉट एच फाइल, रुक डज नॉट बिलोंग देयर बिकॉज यू ओनली नीड वन टेम्पो, ठीक है।
रुक को A5 पे रखना है और किंग को H7 G7 पे ही रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ड्रैग आउट कर दिया है सेशन को, बट आपको आज 2 इम्पोर्टेंट फैसेट्स बता दिए मैंने। कभी मत हारिएगा। My Asha and Vinati is that only. Thank you for joining the session for today. And this is the second last day. I'm signing off with the tomorrow's day. And tomorrow के लिए अनाउंसमेंट इज, कल हम क्वीन एंड गेम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, मतलब आज की तरह क्वीन एंड गेम करेंगे। और कल आपको अरेना टूर्नामेंट में ज़रूर खेलना है, बिकॉज वी विल गिव 1 मिनट फॉर ईच प्लेयर अलॉन्ग विथ 2 सेकेंड्स इंक्रीमेंट। और 30 मिनट का टूर्नामेंट रखूंगा, 8 बजे स्टार्ट होगा। क्वीन काफ़ी डिफिकल्ट एंड गेम होती है इन कंपैरिजन टू अदर पीसेस, तो इसलिए सबको 1 मिनट मिलेगा फॉर ईच ऑफ द मूव्स, आई मीन फॉर ईच ऑफ द मैच, प्लस 2 सेकेंड्स इंक्रीमेंट फॉर ईच प्लेयर, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, ह्यूज थैंक यू। व्हाट इफ, अच्छा हाँ, थैंक यू। इस चीज़ को मैं बता देता हूँ आपको। आप कह रहे हो किंग वॉक कर रहे हो यार, मैं तो चेक देता रहूँगा आपको पीछे से। चेक 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 चेक, मैरी गो राउंड चलते हैं। चेक 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 एंड दिस A5 पे रख लो, ठीक है। ऊपर आए, फ्लेक्स करो अपने ब्लैक किंग के साथ, फ्लेक्स करो दिस दिस, ठीक है। एक और मूव फ्लेक्स कर सकते हो, और यहाँ पे आए तो चेक चेक की बरसात डालते रहो, फिर बस ड्रॉ ड्रॉ लेना पड़ेगा। ब्लैक किंग को धमकी दो कि ड्रॉ लेना पड़ेगा। समझ गए शशांक भाई? ग्लैड यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन। चेक चेक देते रहना है, और जब किंग आपका यहाँ पे B5 पे आ जाए, रुक को चुपचाप A5 पे ले जाना है। जब भी चेक ना हो, चुपचाप रुक को A5 पे ले जाना है, और बस किंग के साथ फ्लेक्सिंग करनी है और A5 पे रखनी है। किंग जैसी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आप बस चेक की बरसात दे देना, गेम सिमट जाएगा ड्रॉ में, ठीक है ना। जब तक आपका ओपोनेंट चाहे 50 मूव बाद सर्वर ही अबॉर्ट कर देगा कि आपका गेम ड्रॉ है। हाँ, अरे यार हम ब्लैक खेल रहे हैं, चलो मैं आपके लिए साइड चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गई ओरिएंटेशन में। यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ आपको, ठीक है। ब्लैक से ड्रॉ करना है बेसिकली। लो यार ये समझ लो, ये टेक्निक ना ब्लैक से ड्रॉ करने के लिए है। ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड अब मैं बोलूँगा गुड नाइट श्रीकर ब्रो। नाउ इट्स गुड नाइट, वी आर लीविंग द सेशन, ओके। सो थैंक यू, सपोर्ट अस, नीलगिरी को सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चेयर करो इफ़ पॉसिबल। अगर एकेडमिक वर्क्स है तो एटलीस्ट गेम्स देखने की कोशिश करो थोड़ी देर भी, जैसे चेस ओलंपियाड देखते हो आप लोग। उतना क्वालिटेटिव नहीं होगा, बट स्टिल आपको मज़ा आएगा जरूर। लीग है ज़रूर देखना, या लीग भी देख सकते हो, कमेंट्री थोड़ी सी होगी अच्छी खासी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड यू कैन लीव। एंड मुझे 10 बजे एक और सेशन लेना है, उससे पहले मेरे डिनर करना है मुझे। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई रियली होप नीलगिरी विंस दिस टाइम। एक लॉन्ग ओवर ड्यू है, और ऑलरेडी 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार जीत के इस बार अपने टेन्योर को प्राउडली ख़त्म करना है। यू डू द ट्राई। अबे भाई मैं खेलने वाला हूँ यार, आई एम गोइंग टू प्ले, दैट्स वाई आई कैन नॉट कॉमेंट। और वहाँ पे ना शामात वाले लोग होंगे, सो दैट्स वाई आई कैन नॉट से फॉर फ्रीली। और अदर गेम्स देखते हैं यार, मतलब देखो शामात से इनविटेशन आएगा तो ठीक है, लेकिन ट्रैश टॉक कर नहीं सकता यार, वहाँ पे ना IIT लेवल पे लोग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चलो कोई कहता नहीं है कुछ, बट देयर all the PODs and other eminent personalities and sponsors watch that commentary, ठीक है ना। तो वहाँ पे we need to follow certain norms and code of conduct, that's why। हाँ, लाइव देखने को मिलेंगे ज़रूर। अरे शशांक भाई तुम तो क्वालिफाइड हो यार, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, सब्र रखो, ठीक है। चलो चलो गाइस, गुड नाइट, ठीक है। मिलते हैं कल, आखिरी दिन है, थोड़ा चार्ज अप आना, ठीक है। क्वीन एंड गेम है,
मुश्किल होगा थोड़ा सा, थोड़ा चार्ज अप और दिमाग से फ्रेश आना। सैटरडे नाइट है, ठीक है। उसके बाद फिर CSL में सपोर्ट करना हम लोगों को। नीलगिरी विंस, ठीक है। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव नाउ।